अभी गड़बड़ हो गई थी, दूसरा आईडी स्टार्ट कर दिया था। चलो देखते हैं आज इसकी पावर। स्टार्ट करें जी। हेलो। हाँ यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उसमें टाइम लग गया। एक्सपेरिमेंट तो सफल हो गया, मैं लेट हो गया। गेस करो कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बताओ। आवाज आ रही प्रॉपर? हेलो हेलो। हाँ हाँ सर। हाँ जी अच्छा सर। चलो स्टार्ट करें क्लास। यस सर। सो एज पर प्रॉमिस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ाएंगे, है ना? एंड देन क्या हो गया? चलो चल रहा है ये पेन मेरा, ठीक है। सो पेन मेरा कैसे चलेगा? ठीक है चलो। So complement system, already you know this word is complement, है ना? Complementary for killing. So how they are complementary for killing? Because they are directly going to make a pore. So for example, you can see this picture. This is a beautiful picture. You can see this is the membrane lesion, है ना? Ring-like structure, and then you can see membrane lesion side on tubes, and this is the diagram, है ना? In which this pore-like structure is created, na, complex pore. So that is called as the MAC. What is the name? They are called as the MAC. They will be called as a MAC. इनको कहते हैं MAC. MAC means membrane attack complex. Membrane attack complex, है ना? Membrane attack complex. Okay. So, but question is how? What is the molecular mechanism? What are the different type? Because CSR is going to ask directly like this, है ना? So let us see. So our objective is to understand what is the complement system, what are the how they are in the innate and adaptive immune response, and what is the mechanism of activation and function of complement system, and the complement is able how to able to distinguish between host cell and non-self pathogens, right? So these deficiency of complement and complement regulated protein can result in disease also. Okay. So what is the complement? Complement is a प्रोटीएज कास्केड। जैसा कि हमने पहले बताया था, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज ए काइंड ऑफ प्रोटीएज कास्केड, राइट? ठीक है, तो ये एक तरह का प्रोटीएज कास्केड है जो कि चलता रहता है। So complement is a system of proteases. All those C1 to C9, there are a lot of proteases are there, and they are given a specific code, है ना? तो all C1 to C9, है ना? C means complement, है ना? तो all these are inactive enzyme. Inactive enzyme. How they are going to be activated? Tell me. Suppose this is a inactive protease. How you will make them active?
हेलो, Proteolytic cleavage. हाँ यस, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज, Cleavage. प्रोटियोलिटिक cleavage. This is very important. Proteolytic cleavage is very important mechanism. So similarly, you can see here a lot of mechanism is going to complement system proteases that mostly exist in plasma, but some components are found on the surface of cell also. So these proteases circulated as inactive precursor or proteases, or they are called as the zymogens that can be activated by proteolytic cleavage, right? So activation of the complement system is triggered of a cascade of activated proteases, and activated proteases generated by cleavage of its zymogen precursor, cleavage substrate, the next protease precursor. Okay. So how there is activation, there is a specific mechanism. Otherwise, a specific mechanism will not exist. Then triggering of the cascade will not be possible. So it's like a football, है ना? It's like a football. One player is passing the ball to others, है ना? Other player is passing the ball to others, and finally hit the goals. Okay. So this is very similar to the which play फुटबॉल, है ना? फुटबॉल की तरह से चलेगा. आपको ध्यान देना, तीन तरह की मैकेनिज्म होती है. एंड देन यू कैन सी हाउ द कास्केड इज लाइक ए एक्सपोनेंशियल एम्पलीफायर, है ना? एक्सपोनेंशियल एम्पलीफायर, how they are working exponential. One molecule then generating 100 molecule and then generating 10,000 molecule. They are generating 10,000 molecule. Okay, so this is kind of mechanism. Okay, so let us see next slide. What is the function of complement? Opsonization पूछ रहे थे प्रीति. ये सिस्टम आपने जो उठाया है तो वो खत्म नहीं होने वाला है. 3 दिन से ऑप्सोनाइजेशन ही चल रहा है. ऑप्सोनाइजेशन एंड पैथोजन क्लियरेंस. दिस इज a C coated bacteria, right? Complement, C means complement coated bacteria, and immune complex are marked for engulfment of phagocytic cells such as macrophages. So what is the inflammatory cell stimulation? So first function is opsonization, means coating and then coating of bacteria and then immune complex formation and then fast phagocytosis. And the second function is inflammatory cell stimulation. For example, activation and recruitment of phagocytic cells, for example macrophages, neutrophils, granulocytes. कल इसकी चर्चा कर दी थी, अच्छा हुआ. अगर नहीं करते तो फिर आपको यहाँ पे कुछ भी पता नहीं लगना था. So activation and recruitment of phagocytic cells into macrophages, neutrophils, granulocytes, mast cells. These are mediated by enophytotoxins and small mediators that result in result of proteolytic digestion of complement component. ठीक है ना? And then last one is the direct lysis of pathogen via terminal membrane attack complex. तो ये तीनों अलग फंक्शन है, बहुत ही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से रहते हैं. C coated bacteria opsonization, ठीक है. Inflammatory cell stimulation, then other mechanism, and direct lysis of pathogen, then only they are using the MAC. इसी तरीके से तीन मैकेनिज्म एग्जिस्ट करती है. देयर आर 3 मेजर बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. व्हाट इज दैट? नाउ यू कैन सी, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, फैगोसाइटोसिस बाय coating of bacteria, immune complexes are there, and there is a coating of C3b, IC3b, and then opsonization, and then second mechanism is lysis, right? Second mechanism is lysis. How they are going to lyse by the target cells, by the MAC complex, cell activation. हाँ, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फर्स्ट वन हो गया ये, ठीक है ना? सेल एक्टिवेशन बाय इन्फ्लेमेशन हो जाएगी फैगोसिटिक सेल्स. ठीक है, तो वन बाय वन क्लियर करते चलो. साइंस इज नॉट ए वेरी टफ. वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप. देयर आर 3 pathway of complement activation.
What are the three pathway? Classical pathway, right? Lectin pathway, alternate and हाँ, classical pathway, lectin pathway and alternative pathway, ये तीन pathway होती है। Alternative path. हाँ, सबसे ज़्यादा एग्जाम में ये alternative pathway पूछी जाती है। Sometime comparison पूछ देते हैं with the classical pathway कि what is the exact mechanism, है ना, इसको बीच में कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। Classical pathway, antigen antibody complex formation is essential. In alternate pathway, they must bind to pathogen surface. In lectin pathway, lectin is a sugar molecule, and that's why, and a specific sugar lectin, Menon binding lectin. Menon binding lectin. That's why this is called as the MB lectin. This is Menon binding lectin. This is called the MB lectin, right? And it's mannose on pathogen surface. MBL, MASP1, MASP2, C4, C2. तो ये सारे इसके इंटरमीडिएट हैं जो कि एक्टिवेट करते हैं C3 कन्वर्टेज को, है ना। C3 कन्वर्टेज इज एंजाइम। तो ये देखो तीनों ही यही काम कर रहा है, राइट। ये यहाँ से कॉमन पाथवे है, राइट। दिस इज द एग्जीक्यूटर पाथवे और इफेक्टर पाथवे एंड दिस इज द इनिशिएटर पाथवे, राइट। तो इनिशिएशन होता है बिकॉज ऑफ सम स्पेशल कॉज। Here is the antigen antibody complex. Here Menon binding lectin binds mannose on pathogen surface. Special pathogen आ गए तो there will be Menon binding lectin, है ना। इसीलिए इसको MB lectin pathway कहते हैं या sometimes lectin pathway कहते हैं। And then alternative pathway they need pathogen surface. तो अब आप देख लो, ये यहाँ से तो ये क्लियर हो गया ना कि what is the actual requirement. So now you can see here C1Q going to break down, right, into C1R, C1S, फिर C4, C2. ये सारे एक अलग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। They are going to break down C3 convertase into C3B, C3A, ठीक है, C3B, C3। यहाँ पे एक फीचर बता दें कि जब भी कोई कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ब्रेक डाउन होता है तो उसका दो पोर्शन होता है, A और B। एक अलग फंक्शन होगा और बी का अलग फंक्शन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे C3BD, यहाँ पे MBL, MASP1, MASP2, C4, C2, यहाँ पे भी C4, C2। तो C4, C2 यहाँ दोनों में कॉमन है। यहाँ पे C1Q, C1R, C1S, QRS कह लो, QRS इन्वॉल्व है। यहाँ पे MBL, MASP1, MASP2, C4, C2, ठीक है ना। यहाँ पे C3, CBD ये इन्वॉल्व है जो कि कन्वर्ट करता है C3 कन्वर्टेज। सो देन यू कैन सी C4A, C3A, C5A peptide mediators of inflammation, phagocyte recruitment, bind to complement receptor on phagocytes, right, and then terminal complement component is activated, C5B, C6, C7, C8, C9, and then there is a formation of membrane attack complex, lysis of certain pathogen. अभी इसको डिटेल करूँगा और भी, अभी ये समरी है ना। दिस इज समरी ऑफ ऑल द पाथवे। क्लासिकल पाथवे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, C1Q, RS, C4, C2, ये है इंटरमीडिएट दैट आर कन्वर्टिंग द C3 कन्वर्टेड इनटू C3A और C3B, ठीक है ना। तो C3A दे आर गोइंग टू peptide mediators of inflammation, phagocyte recruitment. C3B bind to complement receptor on phagocytes, and that's why they are going to cause opsonization. तो lectin pathway mostly कहाँ जा रहा है? opsonization में, ठीक है। inflammatory pathway कहाँ जा रहा है? ये C4, C3A, C5A mediated, ठीक है ना। opsonization of C3B, opsonization pathology of immune complex, ठीक है ना। and then C3B is going to activate terminal complement component C5B, C6, C7, C8, C9, and they are going to activate membrane attack complex, lysis of certain pathogenic cells. तो I think this is very clear. lectin pathway कहाँ जाता है? opsonization की तरफ, right? opsonization of pathogen, removal of immune complex, ठीक। and खास करके ये नहीं कहना चाहिए लेक्टिन पाथवे कहाँ जाता है,
बिकॉज C3 कन्वर्ट इज दो पार्ट में हुआ, तो जो C3A पार्ट है वो गया फैगोसाइटोसिस में, बी पार्ट जो है एब्सनेशन में गया, और बाकी जो बी है वो अदर कॉम्प्लेक्सेस को भी एक्टिव कर रहा है, C5b, C6, C7, C8, C9, टर्मिनल, इसको कहते हैं टर्मिनल कंप्लेंट कंपोनेंट, एंड देन ऑल दीज आर इन्वॉल्व, मतलब इनका जो सेपरेटेड पोर्शन है, ऑल दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स. So what is the classical pathway? This is a very important pathway, and the first discovered. You can see this small fragment. These are the small fragment act as soluble mediator. C4a, C2b, C3a, C5a. These are the small fragment. Large fragment क्या है? Large fragment function by binding to membrane. Membrane को bind करने से C4b, C2a, C3b, right? C5b, C6. C6 का a भी नहीं है, ध्यान देना, है ना. C5 का है ए बी, ठीक है ना. C5 का ए है, C5 ब्रेक डाउन हो रहा है C2A से, ठीक है ना. C3 कन्वर्ट कर रहा है C3A, C3B दोनों में, राइट. C3 ब्रेक डाउन हो रहा है, C2 ब्रेक डाउन हो रहा है C2A, C2B, C4 ब्रेक डाउन हो रहा है C4A, C4B, राइट. यहाँ पे C1 क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है, एंड दे आर बाइंडिंग टू द C4, मतलब ब्रेकिंग द C4 इनटू C4A, C4B. फिर इधर C1 एक्टिवेट कर रहा है C2, C2B, C2A, राइट. समझ में आ रहा है कि बिल्कुल गायब हो जा रहा है. दो पार्ट देखना है, स्मॉल फ्रैगमेंट सबसे ऊपर जिसका एरो बना हुआ है, और जो मेम्ब्रेन से अटैच्ड है वो लार्ज फ्रैगमेंट्स, राइट. So what is their function? They function by binding to membrane. कहाँ बाइंड करते हैं? स्पेशली पाइथोजेनिक मेम्ब्रेन पर. अब कहीं पे A बाइंड कर रहा है, कहीं पे B बाइंड कर रहा है, ये तुम्हें ध्यान देना. सर एंटीबॉडी है और सर ये एंटीजन C1 कॉम्प्लीमेंट है ना, हाँ, C1 से लेकर C9 तक. तो C1 जो है इससे बाइंड हुआ, फिर ब्रेक डाउन होगा जिसकी C4A और C4B, हाँ, और C2A, B, हाँ, यस. अब जब ये ब्रेक डाउन हुआ, C3 को कन्वर्ट कर दिया C3A, C3B, है ना. अब पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ. अब ये C3A फैगोसिटिक रिक्रूटमेंट, और C3B चला गया ऑप्सोनाइजेशन के लिए, और वही C3B चला गया मैक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में. अब ये देखो यहाँ पे, ठीक है ना. अब ये C3, C2A, C3 को एक्टिवेट कर C3A, C3B, है ना. फिर यहाँ पर जो C4B और C2A, हाँ, जो C2A वो फिर से ब्रेक डाउन हुआ C3A में और C5 में. नहीं, C5 तो इनएक्टिव है ना, प्रिकर्सर. वो C3 कन्वर्टेज की तरह एक्टिव हाँ, है। C2A जो है उसको तोड़ने का काम कर रहा है, पेप्टिडेज का काम कर रहा है. हमने यही तो बताया था शुरू में कि जो प्रोटीएज है वो इनएक्टिव प्रिकर्सर, अब उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, जबकि C6, C7, C8, C9 को ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दे आर वेरी एक्टिव, ठीक है ना. तो C5 को सिर्फ ब्रेक डाउन करना है, बाकी ऑटोमेटिक रिएक्शन चलेगा, ठीक है ना. बिकॉज जैसे C5 आएगा वो अट्रैक्ट कर लेगा C6, C7, C8, C9, और ये सारी मिलकर बना लेंगे मैक कॉम्प्लेक्स, ठीक है. क्लियर? यस सर। सर ऐसे लाइन से याद करने में भी आसान रहेगा तुम्हें, ठीक है ना. 1 2 3 टेबल किसी को भी याद हो जाएगा, ठीक है. सर C3B जो है वो अभी शुरुआत हुई है, बस ये देखो आसानी से तैयार करने के लिए हमने ये लाइन लिख दिया है ना. मेम्ब्रेन बना लो, ठीक है, और C1, फिर बीच में C1, C2, उसके बीच में C4 है. अब यहाँ पे देखो यहीं पे उल्टा है, बाकी सारे B नीचे हैं, है ना. C4B भी नीचे है, C3B भी नीचे है, C5B भी नीचे है.
खाली C2 के केस में C2 भी ऊपर है, सी और कौन सा ऊपर है, बाकी यही ऊपर है खाली, है ना, C2 भी ऊपर है, बाकी तो सारे नीचे हैं। तो इजी है याद करना, है ना। C2 आ गया, C3 आ गया, C4 है नहीं, C4 पहले ही आ गया, है ना, C1 C2 के बीच में C4 आ गया, फिर C5 C6 C7 C8 C9 मैक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आगे चलें। ये तो समझ गया सर। क्लियर है ना। अब C1 का स्ट्रक्चर समझो, है ना। C1 हमने बताया था QRS, इसके 3 कंपोनेंट हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसके 3 कंपोनेंट है, C1R C1Q C1S, C1R C1Q QRS, इसे याद रखो, ठीक है। अब मैंने बताया कि जैसे एंटी, ये 3 स्ट्रक्चर क्यों है ना, ऐसे छतरी की तरह, है ना। छाता में देखते हो स्टिक लगी रहती है, उसके ऊपर कपड़े रहते हैं, है ना। अगर वो स्टिक निकाल दो तो कपड़े का कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से ये स्टिक है जो कि एंटीबॉडी को जाके बाइंड करेगी, खास करके आईजीएम, है ना। तो QRS है, अभी देखो पढ़ाना सबसे प्रीति, मुझे लगता है तुम पढ़ाती भी हो ना बच्चों को। C1Q बाइंड्स वन, पढ़ाते थे अब। अच्छा, क्योंकि पढ़ाना दुनिया का मुझे लगता है सबसे टफ काम है, इफ यू आर रियली मतलब सीरियस। अब जैसे मैं 2 साल से नेट CSIR पढ़ा रहा हूँ, मुझे दूसरा साल है, एंड ऑलमोस्ट यही सिचुएशन हर साल रहती है, कभी 6 बच्चे, कभी 10 बच्चे, कभी 5 बच्चे, कभी 2 बच्चे। स्टार्ट किया था 6 बच्चों से, अब मेरा ड्रीम है कि कम से कम 200 बच्चों तक जाऊँ, आई डोंट नो कब पूरा होगा। तो ये C1 की तरह है, C1Q QRS, Q1 गोइंग टू बाइंड आईजीएम मॉलिक्यूल, ठीक है ना। फटाफट देखो, ये देखो पेंटामेरिक होने के नाते ये छतरी की नुमा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कितना अच्छा है ना, छतरी बना रहे हैं। अगर IgG आया, अगर ये IgM आया तो होगा ऐसा, ठीक है ना। पेंटामेरिक आईजीएम मॉलिक्यूल बाइंड टू एंटीजन ऑन बैक्टीरियल सरफेस एंड अडॉप्ट स्टेबल फॉर्म। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री C1Q है क्लासिकल वे में, वो IgM को बाइंड करेगी, ठीक है ना। तो वो उसके 3 तो है ही हैं, 5 उसके आर्म होते हैं, तो 3 तो एटलीस्ट बाइंड कर जाएगी, ठीक है। और अगर डाइमेरिक हो गया तो 3 3 6 5 को बाइंड कर लेगी। इसी तरह से अगर IgG आया तो IgG देखो पेंटामेरिक नहीं है, दिस इज द डाइमेरिक, है ना। डाइमेरिक में क्या होगा कि दीज एंटीबॉडी आर गोइंग टू अटैच टू द सरफेस ऑफ बैक्टीरियल मेम्ब्रेन और पैथोजेंस। नाउ यू कैन सी दे आर हैंगिंग लाइक दिस ना, एक पैर उस पे 2 नाव पे जैसे खड़े है ना, 2 नाव पे। तो C1Q बाइंडिंग इज ए वेरी क्लासिकल, इसीलिए इस पाथवे का क्या नाम पड़ा, क्लासिकल पाथवे, है ना। तो बाइंडिंग C1Q टू Ig एक्टिवेट, अब इसकी बाइंडिंग से क्या होने वाला है, दिस एक्टिवेट C1R विच क्लीव्स एंड एक्टिवेट द सेरीन प्रोटीएज C1S, ठीक है ना। तो ये बाइंडिंग ही ट्रिगर करता है, कैसे, 3 पाथवे को। पहले C1Q बाइंड किया एंटीबॉडी को, और दोनों जब कॉम्प्लेक्स बन गया C1Q प्लस एंटीबॉडी, अब ये ब्रेक डाउन करेगा किसको, C1R को, ठीक है ना। C1R को ब्रेक करेगा एंड देन एक्टिवेट होगा C1S। अब फर्दर पाथवे चलेगी। ऐसा नहीं है कि उतना जो दिखा दिया फटाक से, है ना। क्या था, एंटीबॉडी थी, है ना, फिर C1 था, फिर बीच में आ गया C4 C4B, ऐसे याद रखना, C4A, ठीक है, फिर C1, यहाँ C1 आ गया, है ना, C1A C1B, C2 हाँ C2, C1 तो हो गया, C2B ऊपर चला गया, C2A, ठीक है। C2A C2B हाँ, अब C3A B, है ना, ये C3 कंपोनेंट है, इसको क्लीव करने के लिए यहाँ से आते हैं महाराज, है ना, यहाँ से। फिर C4 इसी तरह से, C5, तो ये कास्केड ये आपको दोनों ही आते हैं पर
4 हाँ पे तो देख लेते हैं, अभी तो नकल मार सकते हैं। तो उन लोग का CSIR का एग्जाम जल्दी होने वाला है, घबराओ मत, जुलाई के एंड में हो जाएगा। ये कहाँ गया पाथवे, हाँ ये तो था। 4 एंड 2 इकट्ठे आते हैं ना सर, C3 हाँ 4 कन्वर्टर्स 2, की तरह एक्ट करते हाँ हैं। 4 2 4 2, C1 C2 के बीच में 4 है, वो भूल गया था। C1 C2 के बीच में 4 है, फिर C3 आएगा, फिर C5 है ना, उल्टा लगा लो, 9 8 7 6 5, फिर 3, फिर 2, फिर 4 है ना। तो C1 इज गोइंग टू एक्टिवेट C2, C2 को ब्रेक कर रहा तो है इसकी क्यूबे में बहुत C4। अच्छी डायग्राम दी हुई। हाँ क्योंकि कहा डायग्राम, अभी टेंशन मतलब, यहाँ तो समझ में अच्छा से आ रहा है ना। ठीक है, आइजियम यस सर। प्लेनर कन्फर्मेशन, आइजियम स्टेपल कन्फर्मेशन, तो ये सब डिटेल है जो डेप्थ में है। बाकी चीज़ें तो अर्ली इवेंट्स ऑफ क्लासिकल पाथवे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, व्हाट इज द फर्स्ट इवेंट, ये याद रखना है, क्योंकि बाकी वो नहीं पूछने वाले हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजिंग, ठीक है ना। सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर स्टडिंग दीज थिंग्स। सो व्हाट इज फर्स्ट इवेंट, बाइंडिंग ऑफ C1 कॉम्प्लेक्स वाया C1Q, ठीक है, C1Q domain to antibody bound to the antigen on the first event in the classical pathway of complement, पहले तो antibody bind करना है, then binding of C1Q to antibody causes conformation change in C1R C1S twice complex, leading to activation of C1R molecule by autocatalysis। चलो इतना नहीं जानना है, बट आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, बिकॉज दे कैन आस्क यू द सीक्वेंस, है ना, कि फर्स्ट इवेंट में क्या सीक्वेंस है, इवेंट में कौन सा सीक्वेंस है। Then activated C1R cleaves C1S to generate an active serine protease C1S, ठीक है ये। So activated C1S cleaves C4 to C4A and C4B which binds to microbial surface, ठीक है ना। So activated C1S cleaves C4, अब वही आ गया ना, C1 और C2 के बीच में C4 का, तो why this was in between C1 cleaves C4 to C4A and C4B, C4B नीचे C4A लाइटर है ना, C4B माइक्रोबियल सरफेस से बाइंड है, राइट। तो यू कैन सी द consequences by the diagram। डायग्राम मैंने कुबेर से भी उठाया है, बट अभी मुझे ये अच्छा लगा। सो दिस इज द लाइटर वन है ना, ये लाइटर वन है, ये थोड़ा हेवियर हो जाएगा। C4B जो मेम्ब्रेन से कोवलेंटली बाउंड टू पैथोजेनिक सरफेस। अब C1S इज द बेसिक रीजन ऑफ क्लीवेज ऑफ C4 into C4A and C4B, ठीक है। Now C4B, what is the function of C4B? C4B binds to C2, है ना, C2 को ब्रेक कर रहा है, C2A C2B, यही उल्टा था मैंने बताया था ना, C2B C2A and C4B ये दोनों C3 कन्वर्टेज बन जाएंगे। पहले तो C4B आएगा, क्लीव करेगा C2A and C2B में, ठीक है ना, which is cleaved by C1S to C2A and C2B forming C4A to A complex, C4B to C2A complex, C4B C2A complex, है ना। तो दिस इज कॉल्ड द C3 कन्वर्टेज, इसी को कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द C3 कन्वर्टेज, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ C3 कन्वर्टेज, C4B C2A, C4B C2A, this will form C3 convertase, C3 convertase, ठीक है ना। ये फोर्थ इवेंट हो गया एक्टिवेशन ऑफ C4, एंड फिफ्थ इवेंट इज द एक्चुअल क्लासिकल पाथ, जिसमें कि C4B C2A इज गोइंग टू, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये क्लियर हो गया, किसी को डाउट नहीं है। कन्वर्ट C3 into हाँ C3। अब देखो thiostemitic binding C4B to the surface of pathogen, C4 C4A C4B, C4B thiostor bonding के थ्रू पैथोजन से अटैच होगा, C4B C4B, ठीक है। So activated C1S cleaves C4 to C4A and C4B which binds to microbial surface, ये तो वही वाला है ना,
रिपीट ही हो रहा है, C4 है, हाँ Yes, sir. ऐसे रिपीट ही हो रहा है, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ C2 एंड फॉर्मेशन ऑफ C4B C2A C3 कन्वर्टर, हाँ ठीक है। अर्ली कंपोनेंट क्लासिकल पाथवे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन 2 4th एंड 5th इवेंट। तो ये बता ही दिया आपको कि C3 कन्वर्टेज बन जाएगा C4B C2A, ठीक है। एंड डेफिशिएंसी ऑफ C1 C4 C2 अगर हो जाए देन व्हाट विल हैपन, then there is a very serious disease named as systemic SLE, इसको बोलते हैं SLE, systemic erythematosus Lupus. glomerulonephritis, SLE, systemic lupus erythematosus, है ना, systemic lupus erythematosus, systemic lupus erythematosus, systemic lupus erythematosus, ठीक है। एम्बिलेक्टिन पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, हाँ अब ये लेक्टिन पाथवे, हाँ ये मैनान से शुगर से एक्टिवेट होगा ना। सो अर्ली इवेंट्स, व्हाट इज द अर्ली इवेंट्स इन द क्लासिकल एंड मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, ऑलमोस्ट यू कैन सी द शुगर इनिशिएटेड। So collectin family of protein are there which is 2 to 6, right? और यहाँ पे क्लासिकल पाथवे में क्या हो रहा था कि this was initiated by the C1 complex, ये MBL complex है, हाँ मैनान बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे। तो MBL collectin family of protein with 2 to 6 globular heads, ठीक है ना, with 2 to 6 globular heads. So you can see this is 2 type of serine proteases, है ना। इसका सेरीन प्रोटीज अलग होता है, ये मैनान शुगर